حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا، ان چیزوں کا شکریہ ادا کرو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان پر ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمارے درمیان تشریف لانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرات محترم، دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد قوموں میں متعدد نبی و رسول بھیجے، لیکن جو نبی اور جو رسول ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کسی قوم کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد اس دار فانی میں نہیں ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ اپنی شریک حیات حضرت آمنہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، آپ مجھے اجازت دیجیے اور میں سفر کو جاؤں تجارت کرنے کے لیے۔ ابھی شادی کے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، ابھی تو صرف شادی کے 2 مہینے ہوئے ہیں اور آپ مجھ سے باہر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، میں انشاءاللہ جلد واپس ہوں گا۔ ابھی شادی کے 2 مہینے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ مکہ شریف سے روانہ ہو گئے۔ شب و روز گزرتے گئے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جو ہی مہینے بڑھتے گئے، دن قریب آتے گئے، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، اسی طریقے سے جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے ویسے ویسے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول میرے پاس آتا رہا اور مجھے اس بات کی بشارت دیتا رہا، مبارکباد دیتا رہا کہ اے آمنہ، جو تمہارے شکم میں بچہ ہے، جو تمہارے شکم میں بیٹا ہے، بڑا عظمتوں والا بچہ ہے، بڑا رفعتوں والا بچہ ہے، بڑی برکتوں والا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جو ہی مہینے گزرتے جا رہے اور میں اپنے گھر میں ہوں، اور ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرمانے میں مشغول ہیں کہ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ مکہ کے سردار آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب، آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جی بے شک میں متولی ہوں۔ وہ سردار کہتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے والد گرامی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں عبداللہ کا باپ ہوں، والد ہوں۔ حضرات محترم، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بارگاہ میں جو لوگ آئے تھے وہ اس سلسلے میں آئے تھے کہ کچھ عورتوں نے ان رؤوسا سے، ان امراء سے یہ شکایت کی تھی کہ جب آمنہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ جس سے ساری گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ اور یہ واقعہ جب ہوا جب حضرت عبداللہ کا وصال واپسی میں جب آ رہے تھے، آپ جب راستے میں ہو گیا تھا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سوگ منا رہی تھی، تو وہ قریش، تو سردار آتے ہیں اور حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی گھر کی بہو جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اچھے کپڑے پہن کر نکلتی ہے، جبکہ آپ کے بیٹے کا عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا وہ سوگ نہیں منا رہی ہے؟ حضرت عبداللہ نے اتنے جملے سنے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بات کیا صحیح ہے؟ وہ سردار کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں۔ مکہ کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی آمنہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اور ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہے جو مکہ کے بڑے بڑے امیر کو میسر نہیں ہوتی، وہ خوشبو ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ حضرات محترم،
जब उन रूसा ने, उन सरदार ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये बात कही है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें नीचे हो जाती हैं, शर्म के मारे सर झुक जाता है और आप घर की तरफ चल देते हैं। जब आप घर में दाखिल होते हैं तो आप घर में दाखिल होते ही आपकी शरीका हयात हज़रत फ़ातिमा जब देखती हैं तो अर्ज़ करती हैं कि अये मेरे सरताज, क्या हुआ है? आपका चेहरा उदास क्यों है? आपका चेहरा जर्द क्यों है? आप उदास क्यों हैं? आपकी निगाहें नीचे क्यों हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि अये मेरी ज़ौजा मोहतरमा, आज कुछ लोगों ने शिकायत की है, हज़रत आमिना की शिकायत की है कि वो जब घर से निकलती है तो वो खुशबू लगा कर निकलती है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, अये फ़ातिमा जाओ और हज़रत आमिना से ये बात मालूम करो, क्या वो जब घर से निकलती है तो वाकई खुशबू लगा कर निकलती है? हज़रत मोहतरम, हज़रत फ़ातिमा नबी की दादी अर्ज़ करती हैं कि मेरे शौहर नामदार, अये मेरे शौहर नामदार, मैं हरगिज़ हज़रत आमिना के पास ना जा सकूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं गई थी इसी सिलसिले में तो हज़रत आमिना की पेशानी से ऐसा नूर फूटा है कि वो नूर निकला है और मेरी पेशानी से टकराया है। अल्लाह अकबर। वो नूर मेरी पेशानी से जब टकराया है तो मैं वहीं गशागर गिर पड़ी और कुछ कलाम ना कर सकी, मैं आमिना से कुछ बातचीत ना कर सकी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फिर अर्ज़ करते हैं कि मैं मर्द हूँ, आप औरत हैं, आप जाकर पूछ ली अपने अंदाज में। हज़रत फ़ातिमा इनकार कर देती हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि चलो हम दोनों साथ चलते हैं। ये दोनों साथ जाते हैं। जब साथ निकलते हैं हज़रत आमिना की दहलीज पर पहुँचते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। हज़रत आमिना ने दूर से देख लिया कि मेरे ससुर आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब्बा हुजूर आ रहे हैं। आप सिमट कर एक कोने में बैठ जाती हैं। जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब करीब होते हैं तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि अय आमिना, कि ये क्या बात सही है कि जब तुम घर से निकलती हो तुम आला किस्म की खुशबू लगा कर निकलती हो, आला किस्म के लिबास पहन करके निकलती हो। हज़रत आमिना ने जब ये कलाम सुना है, हज़रत आमिना ने जब ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जुमला सुना है तो आप शर्म के मारे आपकी निगाहें नीचे हो जाती हैं और आप अर्ज करती हैं कि ऐ अब्बा हुजूर, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, जब से मेरा खाना छूट गया है, जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, जब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, आप जो है सज बन के निकलने की बात करते हैं, आप खुशबू लगाने की बात करते हैं। मैंने जब से हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, जब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है, और आप कहते हैं कि मैं घर से जब निकलती हूँ तो खुशबू लगा कर निकलती हूँ। मैं हर किस खुशबू लगा कर नहीं निकलती हूँ, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। और अरब का ये दस्तूर था कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था तो वो औरत 1 साल तक सोग मनाया करती थी। और सोग मनाने का अंदाज़ क्या था? सोग मनाने का अंदाज़ ये था, ना औरत घर से बाहर निकलेगी, ना औरत अच्छा खाना खाएगी, ना औरत अच्छे कपड़े पहनेगी, ना औरत सुरमा लगाएगी, ना औरत बालों में कंघा करेगी, ना औरत तेल लगाएगी। हत्ता कि एक कोठरी दे दी जाती थी, एक रूम उसके लिए मुतय्यन कर दिया जाता था और उसी में वो रहती थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत आमिना ये कहती हैं कि अब्बा हुजूर, आपको गलतफहमी हुई है। जिन लोगों ने आपसे ये कहा है वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घर से निकलती हूँ तो एक अदब के दायरे में निकलती हूँ, एक अखलाक के दायरे में निकलती हूँ, मैं कोई खुशबू लगा कर नहीं निकलती हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अय बेटी, क्या वो अमीर जो कह रहे थे क्या वो झूठ बोल रहे थे? हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बा हुजूर, जब आपने ये बात कह दी है तो मैं जो राज था उस राज को फाश कर देती हूँ। हज़रत आमिना के अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, दिल की तख्ती पर लिखते जाना। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि अय अब्बा हुजूर, जब से मैंने आपके बेटे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल्ला की अमानत को अपने शिकम में लिया है, अल्लाह अकबर, जब से मैं घर से निकलती हूँ, जिस गली से निकलती हूँ वो गली महक जाया करती है। हज़रात मोहतरम, नबी के शिकम में होने की बरकत यह है कि नबी अभी माँ के शिकम में है और नबी की अम्मी जिस राह से गुजर जाएं, जिस रास्ते से गुजर जाएं, वो रास्ता महक जाए। और जब इतना कहा है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान हुआ, तसल्ली मिली। हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बा हुजूर, बात यही ख़त्म नहीं होती,
बात कुछ और भी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या है बताओ। हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बा हुजूर इतना ही नहीं, हज़रत आमिना अंदर जाती हैं और अपनी तकिया लेकर के आती हैं, तकिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देती हैं, कहती हैं कि अब्बा हुजूर इस तकिया को मैं अपने सर के नीचे लगाया करती हूँ, इस तकिया को सूंघिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस तकिया को सूंघते हैं, अल्लाह अकबर, उस तकिया से वैसी खुशबू आ रही थी जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि आमिना घर से निकलती है तो खुशबू लगा कर निकलती है। यही नहीं, बात यही खत्म नहीं होती है। हज़रत आमिना अपना दुपट्टा लेकर के आती हैं, उसमें भी वैसी खुशबू आ रही है। हज़रत आमिना अर्ज़ करती हैं कि अब्बा हुजूर चंद रोज़ पहले मुझे पसीना आया था और मैंने इस दुपट्टे से अपने पसीने को साफ करा था, उसके बाद मैं इस दुपट्टे को कई मर्तबा धो चुकी हूँ लेकिन इस दुपट्टे की खुशबू नहीं जा रही है। हज़रत मोहतरम, बात यही खत्म नहीं होती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी कुछ और भी है। हज़रत आमिना कहती हैं अब्बा हुजूर ज़रूर बताऊंगी, कुछ और भी है, बात यही खत्म नहीं होती। हज़रत फातिमा जो नबी की दादी हैं वो कहती हैं कि ज़रा मेरे शौहरे नामदार ज़रा रुको। वो एक दीवार के पास जाती हैं और उस दीवार से कुछ मिट्टी लेती हैं, वो मिट्टी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हथेली पर रख देती हैं और कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज इस मिट्टी को सूंघिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब उस मिट्टी को सूंघते हैं तो उस मिट्टी से भी वैसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू उस तकिया से और दुपट्टे से आ रही थी। हज़रत फातिमा कहती हैं कि मैंने चंद रोज़ पहले हज़रत आमिना को उस दीवार पे हाथ रखे हुए देखा था, आपके हाथ रखने की वजह से उस दीवार में खुशबू आने लगी, पूरी की पूरी दीवार महकने लगी। अल्लाह अकबर, जब नबी की अम्मी का ये आलम है तो मेरे नबी की आमद का काल होगा। हज़रत मोहतरम, बात यही ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज़ करते हैं कि बेटी कुछ और भी बाकी है। हज़रत आमिना कहती हैं हाँ अब्बा कुछ और भी है और समात फरमाइए। हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बा हुजूर जब खाने काबा के करीब मेहमान आते हैं, आप घर आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी फरमाते हैं, आप पानी लेकर के जाते हैं, घर आते हैं तो जब पानी घर में कम पड़ जाता है, पानी घर में ख़त्म हो जाता है तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक कुएँ के पास जाती हूँ। और आपकी एक खासियत थी, जब आप पानी लेने जाया करती थी तो सिर्फ आप पानी का बर्तन लेके जाया करती थी, ना आप रस्सी लेकर जाया करती थी, ना कोई डोल लेकर जाया करती थी जिससे पानी निकाला जाता है कुएं से। हज़रत आमिना का बयान है, अर्ज़ करती हैं कि अब्बा हुजूर जब मैं बर्तन लेकर के कुएं के पास पहुंचती हूँ तो जैसे ही कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ वो पानी मुझे देखता है कि नबी की अम्मी आ गई है, वो पानी दौड़ा दौड़ा ऊपर को आ जाता है और मैं पानी भर लेती हूँ। इतना ही नहीं, औरतें कहती हैं कि ऐ आमिना ठहरी रहो, अगर तुम चली जाओगी तो ये पानी भी नीचे चला जाएगा। हज़रत आमिना ठहरी रहती हैं। तमाम औरतें, तमाम बच्चियाँ अपने अपने बर्तनों को फुल कर लेती हैं, तमाम बर्तनों को भर लेती हैं। हज़रत आमिना अर्ज़ करती हैं, हज़रत आमिना का बयान है, हज़रत आमिना कहती हैं जैसे ही मैं वहाँ से रवाना होती हूँ पानी नीचे चला जाता है। अल्लाह अकबर, बात यही खत्म नहीं होती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या बेटी कुछ और भी है? हज़रत आमिना कहती हैं हाँ अब्बा हुजूर कुछ और भी है। हज़रत आमिना कहती हैं कि अब्बा हुजूर जब मैं पानी लेकर घर को वापस आती हूँ तो मैं कभी देखती हूँ कि पेड़ मेरे रास्ते में गिर जाते हैं, पत्थर कभी कलमा पढ़ने लगते हैं, कभी तिनके कलमा पढ़ने लगते हैं, कभी छोटे छोटे कंकड़ दुरूद सलाम पढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पर ये जो कमीने जो कुत्ते फतवा लगाते हैं कि सलात व सलाम पढ़ना जायज़ नहीं है, अरे क्या वहाँ आला हज़रत गए थे बताने के लिए कि ऐ पत्थरों नबी की अम्मी आ रही हैं, ऐ पेड़ों ऐ शजर हजर नबी की अम्मी आ रही हैं, दुरूद सलाम पढ़ने लगो। अब लगाओ उन पर फतवा। वहाँ आला हज़रत तो नहीं गए थे, ना आला हज़रत के पास वो पत्थर आए थे, ना वो शजर आए थे। अल्लाह अकबर, लगाओ उन पत्थरों पर फतवा। हज़रात मोहतरम, उस मसले से सलाम का पढ़ना भी साबित हो गया। हज़रत आमिना का बयान है, हज़रत आमिना जब वापस होती हैं कहती कि अब्बा हुजूर जब मैं घर को वापस आती हूँ तो कभी कभी पेड़ रास्ते में मेरे गिर जाते हैं, कभी कभी छोटे कंकड़ कलमा पढ़ने लगते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज़ करते हैं कि बेटी लाखों ने करोड़ों बस इबादत की है, लेकिन कभी किसी शजर ने, कभी किसी पेड़ ने किसी को सलाम नहीं किया है, किसी ने दुरूद नहीं पढ़ा है, किसी पर सलाम नहीं पढ़ा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी जो वो कलाम करते हैं क्या तुम उसको सुनती हो? हज़रत आमिना अर्ज़ करती हैं कि हाँ अब्बा हुजूर मैं उसको सुनती हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी उसको तुम समझती भी हो?
حضرت آمینہ کہتی ہاں ابا حضور میں اس کلام کو سمجھتی بھی ہوں۔ حضرات محترم، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ابا حضور وہ پیڑ کچھ اور نہیں کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ اے بیٹی کیا وہ پیڑ جو کہتے ہیں وہ تم سمجھتی ہو؟ حضرت آمینہ کہتی ہاں کہ میں سمجھتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں تو بتاؤ وہ پیڑ کیا کہتے ہیں، وہ شجر و حجر کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں وہ پیڑ یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی ام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رسول کی امی آپ پر بھی سلام ہو اور آنے والے بیٹے پر بھی صلاۃ و سلام ہو۔ حضرات محترم، نبی کے تشریف لانے سے پہلے یہ تمام مناظر، تمام واقعات پیش آ رہے ہیں، اور جب میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے کیسا سہانا منظر تھا، کیسی سہانی گھڑیاں تھیں کہ تمام یہ امید لگائے تھے کہ کوئی تو ایسا آئے گا جو اس ظلم کو دفع کرے گا، کوئی تو ایسا آئے گا جو میری دسترسی کرے گا، جو میری عزت افزائی کرے گا۔ جب حضرت آمینہ کے لال پیدا ہوتے ہیں، جب حضرت عبداللہ کے لخت جگر اس دار فانی میں تشریف لاتے ہیں تو تمام کے تمام خوش ہو جاتے ہیں، تمام میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ حضرت آمینہ کا بیان ہے جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت آمینہ کا بیان ہے، آپ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ سجدے میں ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ختنہ کیے ہوئے ہیں، خوشبو لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ کا بیان ہے تمام بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو اتنی تکلیف ہوا کرتی ہے، لیکن جب میرا لال پیدا ہوا تو مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ حضرات محترم، یہ نبی کے تشریف لانے کی برکتیں ہیں کہ نبی کے تشریف لانے سے پہلے تمام عالم نور سے منور ہو گیا، نور سے روشن ہو گیا۔ اس کے بعد واقعات درپیش آتے رہے۔ حضرات محترم، تفصیل بڑی لمبی ہے، اگر رات بھر بیان کروں تو رات گزر جائے گی، لیکن نبی کا نام اور نبی کا بیان ختم نہیں ہوگا، نبی کی تعریف و توصیف کم نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ جشن عید میلاد النبی اور نبی کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگ وہ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اس تمام انتظام کو تیار کیا ہے، اور تمام انتظامات اپنے نفس کے ذریعہ، اپنے پیسوں کے ذریعہ جو تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائیوں میں بھی اپنا برکت عطا فرمائے، ان کی عمروں میں بھی اپنا برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔